हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 23। ये चैप्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, डेवलपमेंट ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। यानी देखा जाए तो भारत के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का विकास किस प्रकार हुआ है, इसके विषय में हम विस्तारपूर्वक यहाँ पर जो ज्योग्राफी के यानी भूगोल के चैप्टर में करेंगे। ये चैप्टर कई मानने में हर क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, इवन कि जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट ईयर mineral fuel. Mineral fuel is the most important here. The mineral fuels include a coal, petroleum, natural gas, atomics, and radioactive minerals here. You know that the mineral is a fuel here. Fuel include a coal, petroleum, natural gas, and atomic and radioactive mineral. The first here in India, coal is the primary source of commercial energy. You know that in India, coal is the primary source of commercial energy. It is used as a fuel in industry and thermal power station, and also for a domestical purpose in some part of the country. It is also used as a raw material in a chemical and fertilizer industry, and it is a production of thousands of items of daily use. That is important here. It is also used as raw material in chemical and fertilizer industry, and there are production of the thousands of items of daily use. As per the assessment of January 2005, the total coal reserve of the country stand at 2,47,847 million ton. That is important here. 2005 Jan, a total coal reserve is the country has stand at 2,47,847 million ton. Unfortunately, the bulk of the Indian coal reserve are of rather a poor quality. There is unfortunately, there is the most important here, a poor quality of the coal here. We meet a part of our cooking coal is a requirement through the import. In India, emphasis the began a led to setting of thermal and super thermal power station and are the near the coal field, and electricity generated is the supply to far off the place through the transmission line here. At one time, Indian Railway were a largest consumer of coal. You know that there is important. At one time, the Indian Railway consume a large amount of the coal. Since there is a switched on their use of diesel and electricity, and they are no more there is a direct consume of coal. There is a difference for the next generation here. Here show the table. There is the most important. India is a consume of here. There is an important consume the 2045 to 1950 to 51. There is the most important consume here. The 1950 to 51 there is a production of the million ton is the 32 only, and 60 to 61 there is 55.7 million tons consumed only, and 70 to 71 there are 76.3 millions, and 80 to 81 there are 118.8 million,
and 1991 there 225.7 million, and 2004-5 there is a 376.63 million ton are consumed here. There is the most important in the table. The next year distribution. The distribution in a coal in India occur two important types of coal field. The coal in India occur in the two important types of coal field. They are the Gondwana coal field and tertiary coal field. Tertiary coal field and Gondwana is a coal field. There are two types. Out of the total and coal reserve and production in India, Gondwana coal is a field contribute of 98%. Gondwana coal field is contribute here 98%, and the rest 2% is produced by tertiary coal field. The Gondwana coal field are located in the sedimentary rock system of Lower Gondwana S. They are distributed chiefly in the river valley of Damodar, Jharkhand, West Bengal. The valley of here, Damodar, Jharkhand, West Bengal, the son of Madhya Pradesh, Chhattisgarh. The Madani is Orissa, the Godwari is Andhra Pradesh. Godwari is Andhra Pradesh and the Bradha is the Maharashtra. Tertiary coal field occur in the extra peninsular area which include Assam, Meghalaya, Nagaland, Arunachal Pradesh, Jammu Kashmir and Sikkim here. Besides the lignite or brown coal are found in the coastal area of Tamil Nadu, Gujarat and in the land basin of Rajasthan here. The Jharkhand rank highest in production as well as a reservoir of coal in India. Jharkhand is the highest rank of production of the reserve of coal in India. The coal deposit of Jharkhand mainly occur in Dhanbad and Hazaribagh. Hazaribagh is most important, is a center located in Jharkhand. There are mainly deposit of coal on this side of Dhanbad and Hazaribagh. And the Palamu district is a Banbad district of most important coal field of Jharia and the Chandpura are located. The oldest coal field of the Rani Ganji in the situated in a West Bengal. The Rani Ganji is situated in West Bengal. It is the second largest coal field in India. The Rani Ganji is a coal field stretches as a Brandhavan and Pirolis district. In the Chhattisgarh, coal deposit occur in Bilaspur and Sarguja district. There is important in Madhya Pradesh coal deposit are found in Siddhi, Sahdol and Chandravara district. There is important Singrauli as a coal field in the Sandol and Siddhi district is the largest in the state. In Andhra Pradesh, coal occurred in the district of Hyderabad, Karimnagar and the Warangal and Khammam and the West Godavari. In Orissa, Talakchar in the important coal field. Other coal field are the Sambholpur and Sundargarh. Sundargarh is a district in the Maharashtra. The coal fields are found in the district of Chandpura. The Yotumala and Nagpura. Nagpur is important in a comparison to India as a coal reserve. The laminate in the reserve are relatively is a modest. The bulk of the lignite reserve are located in the around Nevali in the Tamil Nadu, and significant lignite of reserve are found in Rajasthan, Gujarat, Pondicherry and Jammu and Kashmir. The important point I have in this box, there is a most important point, notable point here. A coal is used as raw material in a chemical and fertilizer industries and in the production of thousands of items of daily use. You know that there is an important point. Coal is used as a raw material in a chemical and fertilizer industries and it is a production of thousands of items of daily use. And coal are mainly found in the Gondwana and tertiary coal field. The Gondwana is the most important of coal is found here. The state of Jharkhand, West Bengal, Chhattisgarh, Andhra Pradesh and Orissa are leading to the producer of coal.
The bulk of lignite of reserve are found in and around Nevalis in the Tamil Nadu. There is an important point here. Come on, there is the most important here. A major is a coal field in India. There is a most important map on your screen. There India is a major coal field here. You know that there is a most important is a coal or percent of the India. There is a production here. Nichagams is a Jammu and Kashmir side. Kolkata. There is an important point here on the Jammu Kashmir side, and also is a Rajasthan is a Palana, and the other side is the most important here on screen. There is Arunachal Pradesh side, Miri, Dalfa, Milk Hill. There is the most important support here, and also here are important ports here. There is the Jharkhand sites. The Jharkhand is the most important here. Or Raj, why there is something there. Amtal Church, Tawam valleys, Varhadha, and they are on a spot. They are most important. And Union Valley is also is important for the a major coal field on your screen. There is the most important for the exam view here. यहाँ पर हमारा जो अगला पॉइंट आया है खनिज ईंधन। देखिए खनिज ईंधन के अंतर्गत देखे जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण खनिज के बारे में जो हम यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहले अगर बात करें ईंधन की गुणवत्ता में युक्त खनिजों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और रेडियोधर्मी खनिज जो है शामिल है, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये खनिज का अपना एक विशेष स्थान रखता है भारतीय इकोनॉमिक्स में। और यहाँ पहला जो है खनिज क्या है, पहला खनिज के अंतर्गत देखा जाए तो कोयला। देखिए कोयला काफ़ी महत्वपूर्ण है और कोयला आपको पता है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और इसके कारण ही भारत जो है काफ़ी रिच में गिना जा सकता है। भारत में कोयला जो है वर्ज्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यानी भारत में कोयला जो है वर्ज्य की जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जाता है और देश के सभी कारखानों में ईंधन के रूप में तथा सभी ताप विद्युत गृहों में देश के कुछ भागों में आज भी कोयला घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोयला का उपयोग आज भी बरकरार है और इसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में रसायन एवं उर्वरक कारखानों में तथा दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली हजारों वस्तुओं में उत्पादक में होता है। तो देखा जाए जो कोयला है भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज तत्व है और ये प्रमुख है और इसका उपयोग हर एक क्षेत्र में बखूबी देखने को मिलता है। कहते जनवरी 2005 में किए गए आकलन के अनुसार देश में कोयला के कुल भंडार लगभग 2,47,847 मिलियन टन थी। तो आप समझ सकते हो कि अगर 2005 की आकलन की बात करें तो यहाँ पर जो है कोयला का भंडार काफ़ी थी, यानी 2,47,847 मिलियन टन थी। परंतु खेद इस बात की है कि सकल भंडार में कम गुणवत्ता वाले कोयले की मात्रा अधिक है, यानी जो प्योर कोयला होता है वो कोयला हमें नहीं इस क्षेत्र में है। कहते हैं यहाँ पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ कोयला की जो गुणवत्ता है बहुत ही बेकार है और इसमें कोयला की जो अधिकतम मात्रा जो है बेकार कोयला की है जिसमें गुणवत्ता नहीं है। कहते हैं अच्छी क्वालिटी कोयला नहीं होगा तो उसका अपना ही महत्व अलग हो जाता है और अपना महत्व भी खो देता है। तो यहाँ पर देखा जाए जहाँ 2,47,847 मिलियन टन कोयला है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इसमें अच्छे कोयला की मात्रा बहुत ही कम है। कहते हैं कोकिंग कोयले की आवश्यकता की जो है आपूर्ति आयात द्वारा की जाती है। तो कोकिंग कोयले की आवश्यकता की पूर्ति आयात किया जाता है और भारत में ऐसे प्रयासों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है जिसके अंतर्गत विद्युत ताप गृहों को उन्हीं स्थानों पर स्थापित होती है जो कोयला उत्पादक क्षेत्र में हो। देखिए विद्युत ताप गृहों का जो है उन्हीं स्थानों पर स्थापना होती है जहां पर कोयला का भंडार उपस्थित हो। इससे कोयला जो है बहुत आसानी से जो है उनके जो है विद्युत ताप गृह तक पहुंच जाता है और इससे कोयले जो है बहुत कम लागत लगती है और इसके समय स्पष्ट साल में आते हैं। इन ताप गृहों में उत्पादित विद्युत ऊर्जा को जो है सस्पोषण द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुँचाया जाता है। कभी कोयले की खपत का सबसे बड़ा उपभोग भारतीय रेल हुआ करता था। आपको पता है पुराने समय में अगर रेलवे की बात करें तो जितने भी रेल होती थी वो कोयले पे ही चला जाता था, लेकिन आज कोयले के स्थान जो है डीजल ने ले लिया है और विद्युत ने ले लिया है। अब देखिए डीजल का उपयोग तो कहते हैं ख़त्म लायक थी, लेकिन विद्युत का उपयोग जो है कंटिन्यू चलाया जा सकता है। तो विद्युत पे आ जाना भारतीय रेल का ये बहुत बड़ी जो है उपलब्धि थी।
कहते प्रयोग से भारतीय रेल अब कोयला का सीधा और प्रत्यक्ष खपत करने वाला ग्राहक नहीं रहा, यानी कोयले का जो है खपत अब रेलवे में शून्य के बराबर हो गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्णता को यह दर्शा रहा है। यहाँ पर एक टेबल के अंतर्गत आप देख सकते हो कि यहाँ पर भारत में कोयला का उत्पादन ग्रेनाइट सहित कैसे हुआ है, और इसके उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है कुछ आंकड़े दिखाए गए हैं। कहते हैं 1950-51 में अगर देखिए उत्पादन जो था 32.8 मिलियन टन था, लेकिन 60 से 61 के दशक में जो है बढ़ गया 55.7 हो गया, और 70 से 71 में और भी बढ़ा, कहते हैं 76.3 थी, और 80 से 81 में जो है 118.8 बढ़ गई। तो काफ़ी महत्वपूर्णता देखिए बढ़ता ही जा रहा है। और 1990-91 की बात करें 225.7 हो गया, और वहीं आगे बात करें 2004 और 5 में तो ये 376.63 हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि काफ़ी जो है बढ़ता ही जा रहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात को यहाँ दर्शाया गया है जो आपके समक्ष था। और देखिए यहाँ पर अगर 50 की बात करें, 51 की बात करें तो यहाँ पर 32 था, और वहीं अगर हम देखें आगे तो 300 से अधिक पार कर गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्णता को यहाँ दर्शाया गया है। अब यहाँ बात अगर हम करें जो है कोयला का वितरण, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि कोयला का वितरण किस प्रकार है देश में। कहते हैं भारत में कोयला 2 प्रमुख क्षेत्रों में उपलब्ध है। पहला क्षेत्र जो है गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहलाता है, यानी पहले क्षेत्र को हम गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहते हैं, और दूसरा जो है टर्शियरी कोयला क्षेत्र कहलाता है, यानी दूसरा जो है टर्शियरी कोयला क्षेत्र कहलाता है। भारत का कोयला भंडार एवं उसके उत्पादन का जो है 98% गोंडवाना कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हो कि 98% जो है गोंडवाना कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है, तथा सिर्फ 2% टर्शियरी कोयला क्षेत्र से मिलता है। तो यानी गोंडवाना का यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा। गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है गोंडवाना जो है काल से बनी प्रत्यार्थ शैली समूह जो है समूहों के अंतर्गत अव्यवस्थित है, और इसका भौगोलिक वितरण भी भूवैज्ञानिक कारकों से नियंत्रित है। कहते हैं यानी यहाँ पर जो है भौगोलिक वितरण काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यह मुख्य रूप से दामोदर जो कि झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के आता है, सोन जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, और महानदी उड़ीसा, गोदावरी आंध्र प्रदेश, वर्धा महानदी नदी घाटियों में वितरित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान है। कहते हैं टेरेस्ट्री कोयला क्षेत्र भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी भारत क्षेत्रों में, जिसके अंतर्गत जो है असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा सिक्किम आते हैं। ये सारे क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं इस क्षेत्र में। और इसके अतिरिक्त जो है भूरा कोयला, इसको हम लिग्नाइट के नाम से जाना जाते हैं, इसको भूरा कोयला कहते हैं शुद्ध लैंग्वेज में, और इंग्लिश में इसको लिग्नाइट के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के जो है तटबंधीय क्षेत्र गुजरात एवं राजस्थान में मिलता है। तो देखिए गुजरात भी जो है कोयला के भंडार के लिए परिपूर्ण है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। झारखंड कोयला भंडार एवं उत्पादन दृष्टि से पूरे देश में सब प्रथम है। देखिए ये जो है यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत से कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि जो है कोयला का भंडार का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में। तो झारखंड कोयला भंडार एवं उत्पादन दृष्टि से पूरे देश में सर्वप्रथम है, और कोयला झारखंड के धनबाद, हाजीराबाद एवं पलामू जिलों में मिलता है। झरिया एवं चंद्रपुरा के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र जो है धनबाद जिला में आते हैं, यानी देखा जाए धनबाद जिला काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे पुराना कोयला क्षेत्र जो है रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, और इसका विस्तार जो है बर्धमान और पुरुलिया जिलों में फैला हुआ है, यानी पुरुलिया जिला काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और छत्तीसगढ़ में कोयला निक्षेपण बिलासपुर तथा जो है सरगुजा जिले में मिलता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में कोयला के निक्षेप सीधी यानी शहडोल एवं छिंदवाड़ा जिलों में मिलती है। आंध्र प्रदेश में कोयला के जो है निक्षेप जो है अलीदाबाद, करीमनगर और बरगल और खम्मा तथा पश्चिमी गोदावरी जिलों में मिलते हैं। उड़ीसा अगर देखें तो राज्य में जो है तालचेर कोयला क्षेत्र के अलावा संबलपुर और सुंदरगढ़ जिलों में भी कोयला के निक्षेपण प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र में कोयला निक्षेपण चंद्रपुर और यवतमाल तथा नागपुर जिले में मिलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं भारत के कोयले के भंडार जो क्षमता की तुलना में उसके जो है लिग्नाइट यानी भूरा कोयला के भंडार साधारण है, और सबसे अधिक लिग्नाइट के भंडार जो है तमिलनाडु में मिलते हैं।
यानी नेहोली तमिलनाडु में मिलते हैं। और इसके अलावा लिग्नाइट के महत्वपूर्ण निक्षेपण राजस्थान, पंडिचेरी, जम्मू कश्मीर राज्य में भी मिलते हैं। तो कोयला के देखिए भंडार कितनी विस्तृत है यहाँ पर। अगर इंपॉर्टेंट बातों के और ध्यान दें तो हमें पता लगता है कि इसका प्रयोग, देखिए ये बात नोट करने वाली है कि इसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में रसायन एवं उर्वरक खदानों में तथा दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले हजारों वस्तुओं में होती ही होती है कोयले का। कोयला मुख्य रूप से जो है गढ़वाना तथा तरसेरी कोयला क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। और कोयला उत्पादक में अग्रणीय राज्य जो है क्रमशः झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा आता है। लिग्नाइट के निक्षेपण में बहुत बड़े भंडार जो नहली एवं उसके आसपास के क्षेत्र में मिलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस इम्पोर्टेंटता को जो है मैप में भी दर्शाया गया है। चलिए देखते हैं मैप में क्या दर्शाया गया है। अब यहाँ मैप में भी आप देख सकते हो कि भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र को यहाँ बखूबी दर्शाया गया है। और आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जो है किस क्षेत्र में जो है कोयला भंडार दिख रहा होगा। तो देखिए ये जो है कोलकाता के साइड दिखेगा, राजमहल साइड जैसे सिगोरी, उमेरिया, राजगुड़ा, कोवल, रामपुर, तलचोड़, बलमपरी, ठीक है, ये सारे क्षेत्र है। अगर पेपर में आ जाता है तो कोयला क्षेत्र के आप जो है अपने दिमाग में इस क्षेत्र को अंकित कर लीजिए और इस क्षेत्र को दिखा सकते हो। इवन कि राजस्थान में भी आपको दिख रहा होगा, पलाना में जो है कोयला का क्षेत्र दिख रहा है। और देखा जाए तो और भी क्षेत्र यहाँ पर आया है, वो है नीचा आम, कलकोट, यानी जम्मू कश्मीर के साइड भी आपको ये नज़र आ रहा होगा। और देखा जाए तो यहाँ पर अगर डेलफा, मीरी जो कि आपको असम के साइड है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दार्जिलिंग में भी कोयला का भंडार यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये क्षेत्र जो है कोयला के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आपको जो है अपने पेपर के लिए भी, एग्जाम के लिए भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और ये सारे कोयला का क्षेत्र जो है अपने आप में एक महत्व रखता है इंडिया के जो है कोयले क्षेत्र के अंतर्गत। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें हमने कोयला के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा किया, कोयला के हर एक रंग रूप के बारे में हमने विस्तार से जाना, उसके टाइपों के बारे में जाना, इवन कि हम मैप में भी इसको दिखाया और ऊपर से हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त किया। तो ये टॉपिक कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कहते हैं ये 9th 10th के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि उनमें भी संसाधन के रूप में कोयला के रूप में जो है आता है सब्जेक्ट में, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करने की आवश्यकता है। जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और ऐसे कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा, बाद में कोई टॉपिक आप देखना चाहिएगा तो शायद यूट्यूब पे दूर दूर तक आपको तिरपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए। इसलिए अच्छा यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने से आपको होम पेज मिल जाएगा और होम पेज पे जो है सारी वीडियो आपको नज़र आ जाएंगे। साथ में अगर आप क्लास के अंतर्गत देखना चाहते हैं, सिलेबस के अंतर्गत देखना चाहते हैं, चैप्टर के अंतर्गत देखना चाहते हैं, तो इस सभी का प्रावधान जो है प्लेलिस्ट में है और यहाँ से आप देख सकते हो। अगर कुछ सुझाव देना है, कुछ गलतियाँ हैं, कुछ आप और भी जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर करो।